Welcome me back in the topic probability. And here we are with the last session of the probability. Today we're going to finish it off. Okay, so it's a very interesting topic. Let me tell you, as we all have seen it. So many different sort of questions are there, which are other than the textbook as well. We have studied in this particular sessions. Today's session would go quite long because there are so many questions in the today's session and new questions are there. Okay, so today's session, whatever the questions are, these are extremely important questions. Maybe difficult, you can say, and HODs also we can consider. Okay, so these are the sort of questions that normally appear in the paper for 4 mark or for 3 mark. Okay, so see that we all understand all these questions very properly and remember them. Fine, let's begin. The first thing, the question is, the box has got 12 balls, out of which x are black. Okay, so number of sample space is going to become 12. So black balls will be, balls are x. 6 more black balls are added. Okay, 6 more black balls are added. So number of sample space itself will change, but it will be 18 and black balls will become कितना हो जाएगा, x plus 6. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ही चेंज कर दिया बिकॉज 6 ब्लैक बॉल्स आर एडेड. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू ऐड द सैम्पल स्पेस एज वेल. यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये 18 नहीं करते, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल विल बिकम डबल दैन द प्रीवियस वन. तो पहले प्रीवियस वन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल हम लोग b1 कंसिडर करते हैं, इट इज x/12. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इन द सेकेंड केस इट इज x plus 6/18. and the new one, that is probability of black ball की probability, ये 2 times the probability of black ball in the beginning. That means x plus 6/18 is equals to 2 into x/12. 2 1s are 2, 6s are 12. 6 if I shift this, 6 1s are 6 3s are 18. So this is how we get. This implies we have x plus 6/3 is equals to x. So it was normally 3x. तो x plus 6 is equals to 3x, 2x, x is equals to 3, I think. So there are 3 black balls in the beginning. Can finish, that's it. Find x. x मतलब, that's what we found it. There were 3 black balls. So easy, कुछ नहीं था, right? चलो, so very simple है ना, बहुत simple था, कुछ ज़्यादा difficult नहीं था. हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर डायरेक्टली इन एग्जामिनेशन. इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट विल श्योरली गो रॉन्ग. अ जार हैज़ गॉट 24 मार्बल्स. ओके, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 24. सम आर ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू नहीं दी है, एक्स देते, एंड अदर्स आर ब्लू. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्बल, वन इज ग्रीन एंड अदर इज ब्लू. ओके, तो इफ ग्रीन इज एक्स देन ब्लू विल बी 24 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 24 है. याद रखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. If probability of drawing green marble, the probability of green marble is 2/3 is 2/3. अच्छा, it's not given कि it is something of something, it's just 2/3. Find the number of blue marbles. Okay, probability of green marble is 2/3. Find probability of green marble कितना होता है, green के x है upon number of sample space, that means 24, and which is equals to 2/3 given है. देखो, try to understand. green marbles कितने x है, तो 24 इज सैम्पल स्पेस, तो यही होगा ना 2/3. तो शिफ्टिंग x इज इक्वल टू 2 इंटू 24/3, 3 8s are 8 2s are 16, तो x विल बी इक्वल टू 16. सी हाउ सिंपल इट इज. एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी. तो ब्लू कितने हो जाएंगे, अगर x 16 है तो ब्लू हो जाएंगे 24 माइनस 16, 8 हो जाएंगे, है ना. तो देयरफॉर ब्लू मार्बल्स आर 16. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितनी हो जाएगी, 16/24. तो मुझे लगता है, इज इट 6, नहीं 16 नहीं रे, 8/24, सॉरी 8/20, तो 1/3. तो इट्स वेरी सिंपल, दैट्स इट. क्लियर. फाइंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछी थी, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, तो हो गया, आंसर आ गया 8 नंबर्स आते हैं ऐसे ब्लू मार्बल्स, दैट्स इट. सो वेरी इजी. ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग काम करो, वो पहला वाले ये वाले दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करो और फिर वीडियो पे आ जाओ. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, उसको कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाओ. चलो, व्हाट द क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है इन द नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर मतलब, देखो, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, एक दिन ज़्यादा होता है लीप ईयर में.
एंड नॉन लीप ईयर जो हमें चाहिए उसमें दिन होते हैं 365 डेज। ये बस आपको याद रखना है इसमें। ओके, नॉर्मली 365 डेज होते हैं, दैट इज नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर। और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, सो दैट इज 366 डेज। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज़ गॉट 53 संडेज। तो 52 को अभी भूल जाओ, 53 संडेज चाहिए मुझे, मतलब देयर शुड बी 53 संडेज इन द लीप ईयर। ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अभी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको भूल जाते हैं। 365 डेज है, तो संडेज हम लोग कैसे काउंट करेंगे इन 365 डेज? आई थिंक इफ आई गेट द नंबर ऑफ वीक्स इन 365 डेज, आई एम गोइंग टू गेट नंबर ऑफ संडेज। बराबर है कि नहीं? तो जितने वीक होंगे उतने संडेज होंगे, राइट? तो 365 को मैं क्या करता हूँ, 365 डेज है, डेज को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, बिकॉज 7 डेज का वीक होता है। 7 5 35, एक रहेगा 15, 7 2 14, एक रह गया। ये एक जो रह गया वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, होता है दिन रह गया ना, एक दिन एक्स्ट्रा रह गया, एंड 52 वीक हो गए। दैट मीन 365 डेज इज इक्वल्स टू 52 वीक प्लस 1 डे। इतना होता है, चेक कर लो। 52 इंटू 7 प्लस 1 विल बी 365, बराबर है ना? वही तो किया हमने। एक दिन रह गया। अगर 52 वीक है तो 52 संडे होंगे ही, फॉर श्योर होंगे। 52 वीक से मतलब 52 संडेज रहेंगे। अगर इमेजिन करो कि ये जो दिन है, एक दिन, द लास्ट डे, इफ दिस इज द संडे, देन हाउ मेनी संडेज विल हैव इन दिस पर्टिकुलर ईयर? इज 53। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो 52 वीक के 52 संडेज है, इफ लास्ट डे, सो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डे इज संडे। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा? व्हाट दिस डे कैन बी इज द सैंपल स्पेस। दिस डे कैन बी, क्या हो सकता है? ये डे संडे तो हो ही सकता है, बट और कुछ हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस लिखो इस डे होने के। वो डे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? इतने हो सकते हैं। मतलब कितने पॉसिबल ऑप्शन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि मुझे वो दिन भी क्या चाहिए? संडे चाहिए। सो लेट दैट डे बी संडे। ओके, एंड द इवेंट इज ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कितने पॉसिबल वेज है? एक ही है पॉसिबल वे संडे होने का, तो 1/7 हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ए 53 संडेज? इज 1/7। समझ में आ गया? और एक बार ऐसे वाले क्वेश्चन करें, डोंट वरी। तो 52 संडेज कब होंगे? आप बोलोगे 52 संडेज तो होते ही है, यस, लेकिन अगर ये दिन संडे हुआ तो 53 होंगे। तो मुझे ये दिन संडे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी संडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज where for 52 Sundays of getting 52 Sundays, 52 Sundays। तो कितनी होगी ये प्रोबेबिलिटी? कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? कितनी होगी? सो ये 52 संडेज ही चाहिए, 53 नहीं चाहिए। तो दैट लास्ट डे शुड नॉट बी संडे। तो कितने? 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बी 6/7। 6 टोटल इज 7, तो 6/7 इज नथिंग बट माई प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज। देखो समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन। देखो अभी ये जब आप लोग करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, दोनों एक साथ समझ में आते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ गॉट। अभी मेरा कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? डेज इन लीप ईयर बहुत सिंपल है, 366। अभी विच इज़, अभी 366 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूँगा, अभी क्यों कर रहा हूँ मैं ये? क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि उसके ये कितने हैं, डेज एंड वीक कितने हैं, ठीक है? तो 16 7 2 14, 2 डेज लेफ्ट, तो 52 वीक प्लस 2 डेज। ओके, और ये डे कैसे मालूम है? कॉन्जिक्यूटिव डे है, एक के बाद एक। क्यों कॉन्जिक्यूटिव डे है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, एंड लास्ट वाले जो 2 दिन बचे वो बस किसी वीक में नहीं आएंगे, तो लास्ट वाले 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं।
अब इसमें 52 वीक तो पॉसिबल है ही, इन 2 डेज में से एक अगर संडे हो तो वी गेट 53 संडेज। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ 2 डेज में से एक डे अगर संडे हो देन वी कॉल दैट एज अ 53 संडेज। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 2 डेज। ओके, ये 2 डे के सैम्पल स्पेस देखना है। सो द लास्ट 2 डेज कैन बी, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, सैम्पल स्पेस होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज है तो क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे संडे हो सकता है। तो संडे यहाँ पे है एंड संडे मंडे यहाँ पे है, 2 जगह पे संडे है, दिख रहा है आपको। सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडेज। तो हमारे पास 53 संडेज अभी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, डायरेक्टली भी प्रोबेबिलिटी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, तो कितने संडेज इस 2 दिन में आ सकते हैं, एक आ सकता है और दूसरा यहाँ पे आ सकता है। तो 2 बाय टोटल कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल है 7, तो अपॉन 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखना भूल गए थे हम लोग, तो ये आ गया 7। ओके, एंड फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ गॉट 52 संडेज। अभी वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 52 संडेज। तो 52 संडेज मतलब क्या हो गया, तो वो जो लास्ट 2 दिन में उसमें एक भी संडे नहीं चाहिए। तो संडे नहीं चाहिए मतलब ये सभी आएंगे, राइट, मतलब कितने 5/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5/7। देखो कितना सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से बताओ, या फिर से एक बार वीडियो को देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, एंड आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव डन विद द टॉपिक। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। अ व्हील on which okay, one more thing I forgot to tell you, please note down these questions, both these questions, and then only go for this one, ठीक है। तो नोट डाउन करो, उसको कंप्लीट कर दो इस क्वेश्चन को, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, ठीक है। अ व्हील ऑन विच नंबर्स 1 to 5 आर रिटर्न इज स्पिन ट्वाइस, मतलब एक व्हील है उसके ऊपर ऐसे नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड ऐसे एक पॉइंटर है, तो इसको घुमाया, रोटेट किया, स्पिन किया, एंड देन it will stop somewhere at this position and then I will call my number is 3, ऐसे। एंड twice मतलब और एक बार करना है, उसके बाद आ गया तो 2 आ गया, सपोज इमेजिन, तो पहला 3 नंबर है, उसके बाद 2 नंबर है, ऐसे। ओके, एंड उसका क्या बनाया, फ्रैक्शन बनाया, पहले नंबर का न्यूमरेटर, दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर। देखो समझ में आ गया, फर्स्ट नंबर इज न्यूमरेटर, सेकंड नंबर इज डिनोमिनेटर। तो कितने पॉसिबल फ्रैक्शन है वो होगा मेरा सैम्पल स्पेस। ओके, तो पहले केस में 1 आया तो दूसरे में 1 आ गया, 1/2, 1/3 पॉसिबल है, 1/4 एंड 1/5 पॉसिबल है। ओके, अगर इमेजिन करो पहले में 2 आया था तो 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, बराबर है कि नहीं। 3/1, 3/2, 2 रह गया क्या इधर, अरे 2/2, 2/3, 2/4 एंड 2/5, हाँ सॉरी, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5। जैसे हम रोलिंग डाइस वाले क्वेश्चन में नहीं करते थे क्या, वो ऐसे लिखते थे, बस ये फ्रैक्शन में लिखना है और कुछ नहीं। 4/1, 4 और थोड़ा एक नंबर रिड्यूस हो गया, 2, 4/3, 4/4 एंड 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 एंड 5/5। दिस इज वॉट योर fractions are. So what will be number of sample space? The number of sample space is going to be 25. ये तो क्लियरली समझ में आ गया आपको। अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट नंबर एज ए न्यूमरेटर एंड सेकंड नंबर एज ए डिनोमिनेटर इज 1। ओके, 1 आना चाहिए आंसर, टोटल आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 कहाँ पे आएगा, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 विल बी 1, तो ये होगा 5/25। ये तो ईजी है ना, जस्ट सेम लाइक ये डाइस वाला क्वेश्चन। तो ये आता है 5/25 आंसर डायरेक्टली। दैट फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 2 नंबर
फर्स्ट नंबर इज न्यूमरेटर एंड सेकंड नंबर डिनोमिनेटर इज लेस देन वन. लेस देन वन का मतलब क्या है? न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. दिस इज व्हाट आई कैन कॉल एज अ लेस देन वन. ओके, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होना चाहिए. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर मतलब देखते हैं. लेस देन वन मतलब ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन ओनली वी गेट अ लेस देन वन नंबर. इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर लाइक 3/2 तो ये आएगा 2 1 जा 1 पॉइंट समथिंग आएगा. देख लो, ट्राई टू इमेजिन दिस. तो इसलिए न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. तो इतने नंबर्स आएंगे, राइट? कितने? देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इट इज़ 10/25. हो गया आपका आंसर, दोनों रेडी आपके सामने. ये कैसे करना एक बार समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया डन. ठीक है. वैसे ही अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कुछ अलग है, मिसलेनियस है, जो कुछ ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता. x is selected from 1 to 3 and y is selected from these numbers and xy is a product. Find the probability that xy is less than 9. तो xy प्रोडक्ट है, तो सैम्पल स्पेस जो होगा ना वो होगा, देखो हमने एक नंबर चुना एंड दूसरे सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया. तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9. ठीक है. उसके बाद 2 चुना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 9 18. उसके बाद 3 आई सिलेक्टेड, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 9 27. ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9. ये कैसे है समझ में आ गया? सेम लाइक आपका जो हम लोग लिखते थे ना 1,1 एंड ऑल 1,2, तो वही करना है. इसमें से एक नंबर लेना है, इन तीनों के साथ उसका कॉम्बिनेशन, फिर सेकंड नंबर लेना है तीनों के साथ कॉम्बिनेशन, फिर थर्ड नंबर लेना है तीनों के साथ कॉम्बिनेशन. दैट इज हाउ वी गेट दैट द सैम्पल स्पेस. अभी तो ईजी है. एक्स वाई मतलब ये है मेरा सैम्पल स्पेस. इट शुड बी लेस देन 9. तो लेस देन 9 कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 है. लेस देन 9 वाले नंबर्स कितने? नहीं 5 है. मेरे 12 कहाँ से आ गए? लेस देन 9, सॉरी. 1 2 3 4 एंड 5 5 है. तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5/9. दैट्स द आंसर. दैट्स इट, डन. बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं. तो उन एरर को अगर आप लोग ठीक से अवॉइड कर पाओ तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है. ऑफकोर्स आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस, बट करना ज़रूरी है. आई विल बी सेंडिंग द PDF. आई हैव ऑलरेडी सेंड 1 PDF टू यू. तो ये यही सारे क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करो, एक दो बार उसको प्रैक्टिस करो, सो दैट यू विल गेट योर आंसर्स वेरी क्लियर एंड प्रोबेबिलिटी के एक भी टॉपिक के एक भी क्वेश्चन के मार्क नहीं जाने चाहिए. ओके, सिंपलेस्ट है, ईजीएस्ट है. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक आई डिक्लेयर दैट वी हैव फिनिश्ड इट. सी यू.